4 ایسے بروج آتے ہیں کہ جن کی زندگی میں ٹرانزٹ بڑی خوشخبری لائے گی. پھر اس کے بعد 2 ایسے بروج ہیں کہ جن کے لیے ٹرانزٹ جو ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا احتیاط بھی لائے گی. پیسے کے اعتبار سے بڑی برکت ملے گی, فائنینشلی طور کے اوپر چیزیں نسبتاً ان کی زندگی میں گرو کرنا شروع اور یہ ٹائم کب تک ہوگا؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیورٹ سید مصور علی زنجانی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑی زبردست آپ کو پتہ ہے زوڈک کے اوپر ان کی ریسرچ ہوتی ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں جو میچز کی آپ نے پچھلے مہینے پریڈکشنز دیکھی ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. ساری پریڈکشنز مصور صاحب کی جو تھی بالکل ٹھیک ہوئی میچوں کے حوالے سے. اور ابھی بھی لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ جی آپ کب جائیں گے، ہمیں زوڈک کے حوالے سے جاننا ہے. تو ناظرین اپریل کے مہینے کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے سر کے ساتھ کہ پورا مہینہ کیسا رہے گا، وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھنی ہے. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹرانزٹ کے اوپر ہے، کیونکہ مارس ٹرانزٹ ہو رہا ہے پائسس کے اندر. اور یہ ہوگا، یہ سر سے پوچھیں گے کب ہو رہا ہے اور اس کے فائدے کن کن لوگوں کو ان کے زوڈک سائن میں ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی قرضوں میں ڈوب گئے ہیں. بہت سی فیمیلز ہمیں کمنٹس کرتی ہیں کہ جی ہم پہ قرضہ بہت چڑھ گیا، گھر اپنا کب بنائیں گے، یا وہ چیزیں کب تبدیل ہوں گی. پلانٹ کی پوزیشن ہوتی ہے جس کے بعد آپ کو پتا ہے کوئی بھی اسٹرالوجر ہوتا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ کون سا زوڈک سائن کس ٹائم پہ ترقی کر رہا ہے. اچھا یہ چیز سر سے پوچھیں گے، اس میں ٹاپ زوڈک سائن جو مارس ٹرانزٹ پائسس میں ہوگا اس سے کس کو فائدہ ہوگا. دوسرا آپ کو بتائیں ٹک ٹاک پہ کافی لوگ جو ہیں ویڈیوز ہماری لگا رہے ہیں، تو آپ نے کسی سے رابطہ نہیں کرنا. ریئل نمبر صرف یوٹیوب پہ ہے. میں جتنے انٹرویوز کرتا ہوں آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گے، فلک شیخ آفیشیل چینل پہ نظر آئیں گے، یا دیگر وہ یوٹیوب ہی ہمارا اصل پلیٹ فارم ہے. تو ٹک ٹاک اگر سر کا اکاؤنٹ بھی ہے تو نمبر یہی ہوگا جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل پہ. تو یہ آپ نے لہٰذا احتیاط کرنی ہے. دوسرا میں ایک کمنٹ میں لنک لگا رہا ہوں، اس کو آپ نے رپورٹ کرنی ہے، اوپن کرنا ہے، اس کو رپورٹ کرنا ہے. ہماری ویڈیوز لگا رہا ہے تو آپ سب جب رپورٹ کریں گے تو اس کے توسط سے یہ بند ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا آپ سے کام ہے، آپ اور میری مدد سے یہ کام ہو جائے گا. سلام دو کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے فلک، بالکل ٹھیک. زبردست سر، خیریت سے؟ زبردست سر. سر یہ ٹرانزٹ ہے جو میں نے بتایا مارچ ٹرانزٹ پائسس، بالکل آپ نے یہ بتایا. اور یہ آپ یوں سمجھیے کہ مارچ کے مہینے میں جتنے بھی افراد، جتنے بھی اس میں بچے، بڑے، بوڑھے اور فیمیلز، میلز، اور اسپیشلی ایسے لوگ جو کہ کسی وجہ سے اس وجہ کو لے کے بہت پریشان تھے کہ پتہ نہیں دنیا میں کوئی جو ہے جنگی کیفیت ختم نہیں ہوگی، یا کسی طور کے اوپر جو ہے بد امنی کسی لحاظ سے پاکستان کے اوپر اثر انداز نہ ہو جائے. یا بہت سارے ایسے لوگ جو فکر مند تھے اپنے پیاروں کو لے کے، کہ بہت سارے ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو ہے وہ خلیجی ممالک میں برسر روزگار ہیں. نہ صرف خلیجی ممالک میں بلکہ بہت سارے ایسے افراد بھی ہیں جو کہ ٹریول کرنا چاہ رہے تھے، ان کے ٹریول نہیں ہو پائے. بہت سارے ایسے افراد جن کے مجھے فون کالز، میسیجز آتے رہتے ہیں کہ جن کے بزنسز چل رہے ہیں وہاں پہ، بہت بڑے پیمانے کے اوپر ٹریڈ چل رہی ہے، بزنس چل رہے ہیں، اور وہ اس لحاظ سے اچھے خاصے متاثر ہیں. کیونکہ منتھ آف مارچ ان کی زندگی میں آپ یوں سمجھیے کہ ایک ڈرانا خواب ثابت ہوا، کہ ایک نائٹ میئر ہوا ہے کہ بیسکلی طور کے اوپر وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے جو انویسٹمنٹس کی ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں، جو پلان کر رہے ہیں، وہ عید کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ پیسوں کی ریکوری ہو جائے، بزنس بہت اچھا گرو کرے، چیزیں بہت اچھا سیل ہو جائیں، یا ان کی پیمنٹس آنا شروع ہو جائے، یا پھر کسی طور کے پر ان کے پیارے ان کو ملنے کے لیے واپس آ جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا میجر امپیکٹ تھا جو کہ ٹرامیٹک طور کے اوپر منتھ آف مارچ کے ساتھ ہی ختم ہونے جا رہا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے جو زوڈک سائن اچانک سے امیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں. بالکل ایسے دیکھیں اچانک سے اوور دی نائٹ، جیسے ابھی منتھ آف مارچ میں تمام افراد جو کہ ان کنٹریز کے ساتھ لنکڈ کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہو، پاکستان سے باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، لیکن وہ لنکڈ کر رہے تھے اسی پورے خطے اور اسی ریجن کے ساتھ. اب اس پورے خطے اور اس ریجن کے اوپر جو آسمانی کونسل کے اوپر ایک انگارہ یوگ کی کیفیت بنی، اور اس کا بہت شدید امپیکٹ جو ہے وہ صرف اسی ریجن کے اوپر آیا، جس وجہ سے تمام تر وہ افراد جو ہے وہ بہت اچھے خاصے متاثر ہوئے، جس وجہ سے پیٹرول پرائسز بہت انکریز کر گئی. اور پیٹرول پرائسز نہ صرف پاکستان میں انکریز کی ہیں بلکہ آپ پاکستان سے زیادہ برا حال دیکھیں گے. انڈیا میں بہت برا، پاکستان میں کوئی اتنا اللہ کا شکر ہے کہ بہت کوئی برا حال نہیں ہوا. پاکستان میں ہر چیز چل رہی ہے، سکولز کافی حد تک گورنمنٹ نے بند کیے لیکن پھر بھی کھلے ہوئے. سیکنڈلی طور کے اوپر لوگ اپنے آفیسز جا رہے ہیں، روزگار کما رہے ہیں، باقی چیزیں چل رہی ہیں. تھائی لینڈ کا حال اٹھا کے دیکھیں، فلپین کا اٹھا کے دیکھیں، انڈونیشیا کو اٹھا کے دیکھیں. پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ
लोगों ने पाकिस्तान में तो खैर लोग शौकिया तौर के ऊपर लाइन में जाके समटाइम्स लग जाता है, क्योंकि उनके माइंड में ये भी होता है कि यार ये एक टैंक खत्म होगा उसके बाद भी तो टैंक भरवाना ही है। तो इस माइंडसेट के अलावा बाकी मुल्कों में देखें कि लोगों ने क्या क्या चीज़ें नहीं भर भर के रखी कि पता नहीं दुनिया जो है वो कहत साली की तरफ जाने लगी है, दुनिया पता नहीं अपने डूम्सडे की तरफ जाने लगी है, या और पता नहीं एक वर्ल्ड वॉर की कैफियत में जाने लगी है। ये जो ट्रांजिट आप बता रहे हैं आज के प्रोग्राम में, ये ट्रांजिट ख़त्म होने से, बल्कि ये ट्रांजिट शुरू होने से, इससे जो पहले की ट्रांजिट चल रही थी वो ख़त्म होने की वजह से अब आपको इंडिविजुअली तौर के ऊपर हर शख्स की नेचर और मिजाज में ठहराव नजर आएगा। और ये ट्रांजिट कब होगा? 3 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है, और 3 अप्रैल से मार्स एयर एलिमेंट एक्वेरियस में से अंगारा योग की कैफियत से निकल के एंटर हो रहा है वाटर साइन पाइसेस में। अब चूंकि ये प्रोग्राम हमारा है इंडिविजुअली तौर के ऊपर, शख्सियात के ऊपर, इसी ट्रांजिट के ऊपर ना एक और प्रोग्राम हम इंशाल्लाह करेंगे, अभी वो भी अपलोड कर देंगे, वो हम करेंगे वॉर के ऊपर, क्योंकि ये ट्रांजिट जो है ये बहुत मेजर इम्पैक्ट लेके आने वाली है वॉर के ऊपर भी, कि वॉर का सिनेरियो टोटली तौर पे चेंज होने वाला है। तो जो अफराद वॉर के बारे में सुनना चाह रहे हैं तो वो दूसरा प्रोग्राम लाजमी सुने। ठीक है। अब इस ट्रांजिट को देखा जाए इंडिविजुअली तौर के ऊपर, तो हमारे पास मेजरली तौर के ऊपर 4 ऐसे बुरूज आते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में ट्रांजिट बड़ी खुशखबरी लाएगी। इनको ज़िंदगी में ये ट्रांजिट जो है वो निस्बतन रुके हुए कामों को जारी करेगी। प्रॉब्लम, मसाइल, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एग्रेशन, लड़ाई झगड़े, सेहत के मसाइल हों, कामों में रुकावटें हों, पेमेंट्स का रुकना हो, सफ़र का रुकना हो, तालीम का रुकना हो, आपके ख्वाबों का किसी तौर के ऊपर टूटना हो, ये ट्रांजिट स्टार्ट होते ही आपकी ज़िंदगी में चीज़ें दोबारा से रीबिल्ड होना शुरू होंगी। आप किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री सिटी में देख रहे हैं तो 3 अप्रैल के बाद ये चीज़ें बदलेंगी इंशाल्लाह। अब इसमें मखसूस तौर के ऊपर 4 ऐसे बुरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगी में तो चीज़ें बड़ी खूबसूरत और बड़ी पॉजिटिव हैं। फिर उसके बाद 2 ऐसे बुरूज हैं कि जिनके लिए ट्रांजिट जो है वो निस्बतन थोड़ा सा एहतियात भी लाएगी। तो उन 2 ज़ोडिक साइंस का भी मैं ज़रूर जिक्र करूँगा प्रोग्राम के लास्ट में, ताकि जिन ज़ोडिक साइंस के लिए ट्रांजिट थोड़ी केयर ला रही है, लेकिन वो केयर भी होगी तकरीबन को 15 दिनों की, तो उस 15 दिन की केयर में भी उनके लिए चीज़ें बहुत अशद एहतियात वाली हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट और मेजर चेंज जो इस ट्रांजिट के फ़ायदे और बेनिफिट में मिलेगा वो मिलेगा कैंसेरियन बुर्ज सरतान को। कैंसेरियंस वालों के लिए मरीख जो है वो रोल करता है इनके जायचा में, इनके करियर को, इज्जत को, इनके मोरल को, लोगों की नज़रों में इनकी पहचान को। ये कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, किसी जगह से रिस्क कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्सिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी भी काम में हो, किसी भी जेंडर में हो, अगर इनका ज़ोडिक साइन कैंसर है, ये ट्रांजिट स्टार्ट होते ही इनकी ज़िंदगी में इनके काम को, इनकी इज्जत को, इनके मोरल को निस्बतन जो है वो सुकून मिलना। मतलब कैंसेरियन असेंडेंट यानी डेट ऑफ बर्थ में जो आते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ में आते हैं बुर्ज सरतान के हामिल लोग, कैंसर वाले, उनकी ज़िंदगी में इनका इज्जत और इनका रिस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत है। पर एक और चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत ही इंशाल्लाह ब्लेसफुल होगी, और वो चीज़ है इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंटली तौर के ऊपर इनकी मोहब्बत का मसाइल में से निकल आना। इनको ज़िंदगी में मंथ ऑफ मार्च में ये फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि शायद अब ये अपने मोहब्बत या महबूब को जहन से निकाल दें, भुला दें। ये मोहब्बत या पसंद जो है वो इनकी ज़िंदगी में ख़त्म होने जा रही है। लड़ाई झगड़ा, अदावत, परेशानी इतनी एक्सट्रीम के ऊपर बढ़ चुकी थी कि अब किसी तौर के ऊपर इनको ये फील आ रहा था कि अब ये दोबारा से सुलझ नहीं सकती। लेकिन इंशाल्लाह 3 अप्रैल के बाद से जैसे ही मार्च चेंज करेगा, इनकी मोहब्बत से जुड़े हुए तमाम तर तफक्करात ख़त्म होना शुरू होंगे। मतलब कि जो रिश्ते ख़त्म होने वाले थे कैंसेरियन के जो जज्बाती रिश्ते ख़त्म होने वाले थे, मोहब्बत के, महबूब के, या फिर अगर यूं भी आप कह सकते हैं कि ऐसे रिश्ते जो कि इनकी ज़िंदगी में इनके दिल के बहुत करीब थे, चाहे वो इनके शरीके हाथ हो, चाहे वो इनके बच्चे हों, चाहे वो इनके बहुत करीबी दोस्त हों, चाहे वो उनके कोई रिश्तेदारों में कोई फ़र्द हो, जिससे ये जज्बाती लगाव रखते हैं और दिली तौर के ऊपर मोहब्बत करते हैं। हर उस शख्स के साथ इनका रिश्ता इंशाल्लाह दोबारा से 3 अप्रैल के बाद से रीबिल्ड होना शुरू होगा। ज़बरदस्त। गलतफहमियाँ दूर होंगी, मसाइल, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, फिक्रमंदियाँ ख़त्म होना शुरू होंगी। ठीक है। ये चीज़ कैंसेरियन वालों को ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर कुशादगी और राहत दिलाएगा। फिर कैंसेरियन वालों की ज़िंदगी में इनके करियर में ग्रोथ नज़र आती है। करियर में किसी तौर के ऊपर इनको नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए मौके हैं। इनको ज़िंदगी में निस्बतन इनके नसीब में कहीं ना कहीं पे राहत मिलना शुरू होगी, खुशगवारी आना शुरू होगी। चीज़ों में काफ़ी हद तक एक एक करके हर गुजरते दिन के साथ ये अपनी ज़िंदगी में बढ़ावा महसूस करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ महसूस करेंगे। ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मेहनत करना शुरू करेंगे और फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को सिक्योर कर लेंगे। ठीक है। कैंसर इसमें ये पहला बुर्ज है।
पहला ज़ोडिक साइन। कैंसर के बाद हम देखें तो हमारे पास फिर अगला बुर्ज आता है और वो है लिब्रा बुर्ज में साथ। लिब्रा, लिब्रंस वालों के लिए ये पूरा ट्रांजिट इस एतबार से बहुत ही प्रोमिनेंट और बड़ा ही खूबसूरत होगा, क्योंकि मार्स इनके जायचे में इनके पैसे को रूल कर रहा है, और मार्स इनकी ज़िंदगी में इनके पार्टनरशिप को और इनकी ज़िंदगी में इनके बेसिकली तौर के ऊपर इज़्दिवाजी ज़िंदगी को रूल कर रहा है। अब पार्टनरशिप और इज़्दिवाजी ज़िंदगी का प्लानट निस्बतन एक कमज़ोर कैफियत से निकलेगा, तो लिब्रंस एक ऐसा ज़ोडिक साइन होगा जो कि अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खुशी आती हुई महसूस करेंगे। अपने रिश्ते में जो यूँ समझिए कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो नचाकी थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, परेशानियाँ थी, गलतफहमियाँ थी, लड़ाई झगड़े थे, मोहब्बत ख़त्म हो रही थी, एतबार ख़त्म हो रहा था, कहीं पे ज़िंदगी में बिला वजह शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे थे, और खुदा न खास्ता अगर इनकी कोई सेपरेशन भी होने के करीब थी, ये ट्रांजिट जैसे ही शुरू होगा 3 अप्रैल को, लिब्रा अगर आपका ज़ोडिक साइन और आप अगर अपनी ज़िंदगी में इस कैफियत से गुजर रहे हैं, तो वो कैफियत यकसर एकदम से थमना शुरू होगी। यानी सर ये अंगारक क्यों खत्म हो रहा है? अंगारक योग खत्म हो रहा है, ये जो आग वाले इवेंट थे ये भी नहीं होंगे? वो खत्म हो रहे हैं। ओके, ये जो घरों में आग लग जाना, घरों में आग लग जाना, बिला और वजह बिला गाड़ी वजह में आग लग फैक्ट्री में, गाड़ी में, और इवन आपके जहन में एकदम से गुस्सा ट्रिगर कर जाना, एकदम से जलाल में आ जाना, एकदम से मार कुटाई की तरफ चले जाना, लड़ाई झगड़े की तरफ चले जाना। हमने तभी ये वाकयात भी देखे हैं, जब ये पेट्रोल जब हुआ तो उसमें सियालकोट में वो आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में, बिल्कुल, कि वो बंदे को मार दिया और मरने वाले इवेंट गुस्सा अचानक से। बिल्कुल, मतलब ये तमाम तर इवेंट्स आपको मंथ ऑफ मार्च में बहुत बड़ी शिद्दत से नजर आए, बहुत नजर आए, बावजूद इसके कि मंथ ऑफ मार्च रमजान का महीना था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं पे एग्रेशन बहुत नजर आया। ठीक तो है, ये बेसिकली तौर के ऊपर एग्रेशन अब खत्म होने जा रहा है। मतलब ये 3 अप्रैल के बाद से ये चीजें अब उसके बाद अब थमना शुरू होंगी, कंट्रोल होना शुरू होंगी। ठीक है, और आप यूँ समझिए कि जैसे आग जल रही हो और आग के ऊपर आप पानी फेंक दें, आग के ऊपर पानी फेंकेंगे तो उसके बाद आग अपनी शिद्दत और अपनी हैसियत खो देगी, बस उसके बाद थोड़ा सा धुआं उठता रहेगा, और धुआं उठने के बाद चीज़ें जो है वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएंगी। तो सिर्फ वो आप यूँ समझिए कि धुआं उठता रहेगा, लेकिन उसकी जो शिद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी, जो तपिश है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मार्स एंटर हो रहा है वाटर एलिमेंट में। अब मरीख जब वाटर एलिमेंट में एंटर होगा तो उसकी जो अग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तेज़ी है, और बिला वजह की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी और वो थम जाएगी। तो लिब्रा इसमें हमारे पास फिर दूसरा बुर्ज बनता है, पहला कैंसर, दूसरा लिब्रा। लिब्रंस वालों को पैसे के एतबार से बड़ी बरकत मिलेगी, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें निस्बतन इनकी ज़िंदगी में ग्रो करना शुरू होगी। ये टाइम कब तक होगा? ये 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा और फिर ये पूरा अप्रैल का महीना चलेगा, पूरा अप्रैल का महीना। अब इस एतबार से हम लोग देखें तो लिब्रंस की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर ग्रोथ मिलने के चांसेस भी हैं, किसी अच्छी जगह के ऊपर जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने करियर को चेंज कर लें, कोई जॉब किसी जगह मिल जाए, या आपकी जॉब की इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़ लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में मंथ ऑफ अप्रैल में होगी। ठीक है, अप्रैल के महीने में लिब्रंस वालों के अधूरे ख्वाब भी पूरा होना शुरू होंगे, जो कि इन्होंने ज़िंदगी में बड़े अरसा से सोच सके हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे, तो इनकी ज़िंदगी में इनके अधूरे ख्वाबों के पूरे होने का वक्त आ चुका है। ठीक है, लिब्रा के बाद हम बढ़ रहे हैं तीसरे बुर्ज की तरफ। तीसरा ज़ोडिक साइन और वो बनता है एक्वेरियस बुर्ज तलब। एक्वेरियस, ये ट्रांजिट एक्वेरियंस वालों के लिए बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि एक्वेरियंस वाले ज़हनी तौर के ऊपर अच्छे खासे फ्रस्ट्रेटेड चल रहे थे, कमज़ोर फैसलों की तरफ से, ज़िंदगी में डिप्रेसिंग फैसलों की तरफ से, और खुदा न खास्ता बिला वजह जो है वो नेगेटिव थॉट्स इनके ऊपर हावी थे, कॉन्फिडेंस में कमी थी, और बिलो दी बेल्ट इनका कॉन्फिडेंस चल रहा था। हर एक से चिड़चिड़ेपन में रहना, बिला वजह बहस की तरफ चले जाना, घर में बिला वजह तनाव खिंचाव का माहौल बने रहना, काम की जगह के ऊपर बिला वजह बहस करते रहना, और आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाना, ये एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में अब ख़त्म होंगे। एक्वेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में अपना हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस दोबारा से ग्रोथ करने की तरफ आएंगे, अपनी चीज़ों को रोकने की तरफ आएंगे, इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा पुरसुकूनियत आ जाएगी, इनका टेम्परामेंट कंट्रोल्ड होगा, और ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। एक्वेरियस इसमें हमारे पास फिर आएगा तीसरा ज़ोडिक साइन, क्योंकि एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में चीज़ें निस्बतन मार्स के निकल जाने से इनके जहन में और इनके पैसे के घर में आ जाने से इनको ज़िंदगी में करियर ओरिएंटेड बनाएगा। ये अपनी ज़िंदगी में काम को लेके, बिजनेस को लेके जिस फ्रस्ट्रेशन से मंथ ऑफ मार्च में गुजरे हैं, उस फ्रस्ट्रेशन से ये लोग अब बाहर निकलेंगे। अपनी इज्जत को, अपनी पहचान को, अपने इमेज को लोगों की नज़रों में किसी तौर के ऊपर इन्होंने जो गिरता हुआ देखा है, वो मंथ ऑफ अप्रैल में अभी दोबारा से बढ़ता हुआ देखेंगे। तो मंथ ऑफ अप्रैल एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में इनकी पहचान, इनकी शनाख्त, इनका मोरल, इनका कॉन्फिडेंस, इनका स्टेबिलिटी, और मुतवक्का तौर के ऊपर इनके अजीज़ो कारब के साथ इनके रवाबत और इनकी चीज़ों को खुशगवार बनाता हुआ नजर। तो ये हमारे पास आएगा फिर तीसरा ज़ोडिक साइन। तीसरा ज़ोडिक साइन। इसके बाद हमारे पास जो चौथा बुर्ज बनता है वो फिर आएगा
पाइसेस बुर्ज हौत। पाइसेस पाइसेस वालों के लिए क्योंकि मार्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, क्योंकि पैसे का प्लानट है और मरीख पूरा मार्च का महीना बहुत ही कमज़ोर था, अब इनकी एंटर हो रहे हैं जहन के घर में, सोच के घर में। तो पैसे का प्लानट जब जहन के घर में 12वें घर से निकल आएगा तो पाइसेस वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी लाएगा। पाइसेस वालों की ज़िंदगी में पैसे को लेकर जो बिला वजह की फिक्रमंदी, परेशानी और एक स्ट्रेस और डिप्रेशन था, या पैसा किसी तौर के ऊपर ये रोक नहीं पा रहे थे और पैसा बीमारियों पे लग रहा था, तो इनकी ज़िंदगी में इनकी सेहत के अतबार से चीज़ें बेहतर होंगी। ये अपनी ज़िंदगी में हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस की तरफ आएंगे। ये चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर परफॉर्म करने की तरफ आएंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में अब्रॉड, बिरून मुल्क सफ़र या तालीम की तरफ अपनी चीज़ों को मबजूल करेंगे और ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऑनलाइन बिजनेस की तरफ भी इंक्लाइंड होंगे। तो पाइसेस वाले बेसिकली तौर के ऊपर स्ट्रेस, डिप्रेशन की कैफियत से बाहर निकल के ज़िंदगी को बहुत अच्छे अंदाज में समझते हुए मुस्बत इक़दाम करेंगे, और ना सिर्फ मुस्बत इक़दाम करेंगे बल्कि दूर अंदेशाना इक़दाम करेंगे। ठीक है। जो इक़दाम ये अपनी ज़िंदगी में मंथ ऑफ अप्रैल में करेंगे उसका बेनिफिट्स इनको इंशाल्लाह अगले आने वाले महीने मंथ ऑफ मई में भी मिलता रहेगा। तो ये ट्रांजिट पाइसेस वालों को बेसिकली तौर पे दलेरी, शुजात, हौसला मंदी की तरफ लेके आएगी और इनकी ज़िंदगी में इनके पैसों के मसाइल को ख़त्म करते हुए इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर सुकून दिलाएगी। ठीक है। अब इन 4 ज़ोडिक साइंस की ज़िंदगी में तो चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास 2 ऐसे बुरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगी में यही ट्रांजिट निस्बतन थोड़ा सा केयरिंग भी है। अच्छा, केयर जिसने करनी है, जिनके लिए एहतियात और केयर भी है। अब इसी ट्रांजिट में अगर हम इब्तदाई तौर के ऊपर देखें तो हमारे पास ये जो ट्रांजिट बनेगी, ये ट्रांजिट एरीज वालों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होगी, क्योंकि एरीज के लिए मार्स उनके माइंड का प्लैनेट है और वो एंटर हो रहा है चार्ट के 12 हाउस में, और वहाँ पे मौजूद है सैटर्न और सन जो कि इब्तदाई तौर पर रहेंगे, और जहन का मालिक यहाँ पे मूव कर जाना इनको ज़िंदगी में हसासियत की तरफ लेके जाएगा। फ्रस्ट्रेशन से तो बाहर निकल आएंगे, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल आएंगे, लोगों के धोखा देने वाले कैफियत से बाहर निकल आएंगे, लेकिन उसका असर ख़त्म नहीं होगा, असर ज़ाइल नहीं होगा। वो असर इनको ज़िंदगी में अब लोगों से नहीं मिलेगा, वो असर जो है वो ये अपनी शख्सियत और अपनी असाब के ऊपर किसी तौर के ऊपर महसूस करते हुए नजर आएंगे। तो एरीज वालों की ज़िंदगी में यही ट्रांजिट इस एतबार से बहुत केयरिंग है कि इनको ओवर सेंसिटिविटी से बाहर निकला है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई प्रोडक्टिविटी की तरफ ज़रूर माइल रहना है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर लाजमी करते रहना है। अपनी कैफियत को अपने अंदर ही मत रखें और चीज़ों को बयान करते रहें। ये असूल एरीज वालों ने ज़िंदगी में लाजमी तौर पर 3 अप्रैल के बाद एरीज जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात केयर करें डिसीजन मेकिंग में, और अपनी सोचों को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए किसी मुखलिसीन के साथ चीज़ों को शेयर करते रहें। इसके बाद हमारे पास जो फिर दूसरा ज़ोडिक आता है, जो इसके लिए ये चीज़ बहुत एहतियात वाली है, वो फिर बनेगा कैप्रिकॉर्न। क्योंकि कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए यही ट्रांजिट जो है इनकी ज़िंदगी में इनके घर के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, फैमिली मेम्बरान के साथ इनके जो मामलात हैं, उनको बिला वजह कहीं ना कहीं पे बहस मुबाहिसे की तरफ लेके जाएगा। तो इनके घर से जुड़े हुए जितने मैटर्स हैं और इवन इनके रिलेटिव्स से जुड़े हुए जितने मैटर्स हैं, उनमें कैप्रिकॉर्नियंस वालों को थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है कि किसी बहस में मत मुबतला हों, और इनके अजीज़ो कारब और इनके बहन भाइयों के साथ, इनकी फैमिली मेम्बरान के साथ अगर उनकी कोई भी ख्वाहिशात है और ये पूरा नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट उसको सुने ज़रूर, उसको एड्रेस ज़रूर करें और उनको ये एहसास दिलाएं कि उनकी ज़ात इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर ये उनको एहसास ही दिला देते हैं तो ये अपनी ज़िंदगी में इस ट्रांजिट की नेगेटिविटी से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। तो ये 2 ज़ोडिक साइंस हैं जिनके लिए यही ट्रांजिट थोड़ा सा केयरिंग भी है। तो नाज़रीन आपने देखा ये सारी मतलब जो केयर की बात है वो फिर हर चीज़ में आ जाती है। बिल्कुल देखा जाए वो हर एक में आ जाती है। तो जिनको फ़ायदा है तो वो फिर भी हर चीज़ में आ जाती है। बाकी अल्लाह ताला आप सबके लिए अच्छा करे। और 1 से 7 अप्रैल 2026 सर कराची में होंगे। बिल्कुल। ये जो नंबर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, सर अभी नंबर बोलेंगे भी, उस नंबर पे आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। जायचा बनवाना चाहते हैं, ऐसे ही आप लोगों के बर्थ चार्ट भी डिस्कस सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब करते हैं। सर अपना नंबर भी बताएं। और 1 से 7 कराची। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं 1 से 7 कराची में हूँगा। वैसे तो मेरा क़याम लाहौर में होता है, लेकिन हर महीने कराची विज़िट है। और अगर आप लोग कराची में हैं, मंथ ऑफ अप्रैल में मुझे मिलना चाहते हैं, तो मेरा यही नंबर जो कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है 0300948375, इस नंबर के ऊपर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।